practical application as a commander. Selecting the subordinate. The candidate is expected to call few members to assist. वो wisely चुनिए, ऐसे लोगों को चुनिए ताकि आपको अच्छा लगे, दोस्ती बनी है, अच्छे हैं, सहयोग करते हैं, उनको बुलाइए। ऐसे मत बुलाइए जो आपको दिख रहा है कि कपटी हैं या दुष्ट हैं, आपकी चीजें बिगाड़ेंगे। कई लोग, देखिए मैंने आपको सिखा दिया, बात सही, आप सीख गए कि टीम की तरह काम, पर सब लोग तो थोड़ी ना सीखे। सम ऑफ देम विल बी कम्पीटिंग, वो लोग तो उछल मचाए होंगे, जबरदस्ती ट्राई कर रहे होंगे, तब उसमें क्या करोगे आप उनको तो भाषण नहीं दे सकते हो कि देखो मैं हूं संत, मैं स्वामी, सुनो मुझे। They will not listen to you. Got it? So at that point of time, you have to be cool. You can do best. Yes, you can talk in barracks. कि भैया हम लोग की टीम जितना अच्छा करेगी उतने ज़्यादा सिलेक्ट होंगे। मेरे को कई अफसरों ने भी बताया, मेरी माफ़ी छोड़ दो, क्योंकि वो सोचेंगे कोचिंग बेस्ड बोल रहे हो या गाइडेंस बेस्ड बोल रहे हो। अरे भैया कई अफसरों से भी सुन लो। All the officers will also tell you that if you work as a team, and if your team is doing wonderful, maximum number of people will be selected from your group, and including you. इसलिए बता देना, candidate must be wise in selection. अगर आपको लग रहा है heavy weight, light weight लेना है ले लीजिए, लंबा छोटा लेना है ले लीजिए। Anybody who is short and small, you can do that. Must do that. Is not there. Must not call candidate who are objecting, or must call candidate who are good in instruction listening, जो मदद करते। Got it? That's it. The right kind. The candidate must not call very argumentative or disobedient. मत बुलाओ, वो आपका काम बिगाड़ेगा। You should be wise to select the people. कौन सा सही है उसको सही जन को बुलाओ। वो बुलाओगे वो परेशान करेगा, काम करने के बजाय इरिटेट करेगा। आप इरिटेट नहीं भी होंगे तो भी इरिटेट करेगा, काम नहीं होने देगा। कई लोग ऐसे कॉम्पिटिटिव होते, गलत सोच के होते, तो अगर आइडेंटिफाई कर लिया तो डोंट कॉल देम, कॉल द नाइस पीपल हु आर सिंपल, गुड। आफ्टर ऑल बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। आप अगर एक ही प्रकार के समझदार बच्चे हैं तो समझदारों को बुलाइए। Yes or no? Remember that candidate should call like-minded and good candidate, so that task भी अच्छे से हो जाए। वो लोग भी आपको बुलाएंगे, I am sure. The request of right candidate to be called as helper and be considered, but the choice should not be mere emotion. Emotion से ना चलना कि मेरा इमोशन है वो अच्छा है। अरे नहीं यार, देखो is he competent, काम करने में मदद कराएगा। अब पता चला you are feeling pity on the person, उस पर आपको दया आ रही है क्योंकि उसको किसी ने बुलाया नहीं, आपने बुलाया पर वो कुछ भी नहीं कर पाता, वो भी गलत होगा। So I have a balanced approach. Is it clear? Have a balanced approach. The candidate should call simple, सदर, responsible, कोई काम करो तो करवाएगा, sincere and efficient, जैसे बोलोगे तो लग के करेगा, who can rightly do what is told, as the candidate has been participating in different tests, must be aware of the different candidate. उतनी देर में तो जान ही जाते हो, बैरिक्स में रहते हो तो भी जान जाते हो। Is it clear? Okay. अब हम लोग आते हैं राइट नंबर। वैसे तो 2 कैंडिडेट बुलाने की रिवाज है, the 2 people are to be called, but if he says between 1 to 6, so you can call 3 also. Why not? When he said, but don't call them to overcrowd the situation. भीड़ मत बढ़ाइए, call them to utilize. The candidates are called as subordinates. However, sometimes the group testing officer gives one choice to select 2 or more. 1 till 6 candidate as helping person. Don't call 6, overcrowding हो जाएगा. In that case, candidate should call as per need, not more than 3, and crowd the place. ज़्यादा कर लोगे नहीं काम कर पाओगे. However, the candidate may make sure that all the candidates are properly active and helpful. अब 3 बुला लिए तो सबके साथ मिलके जल्दी जल्दी काम कराओ। Okay, you help him also and you help. हम दोनों टीम बना ले तो तुम दोनों जल्दी जल्दी करा लो, कर सकते हो, do it. Provided the officer has said that you can call 2 to 6. If he said call 2 friends, call them. क्यों बुलाया? Sir, they are good in cooperation, they will ask. That also I think I will be completing the right role. The candidate must rightly behave like a commander giving clear instruction. ये बात बता चुका हूँ politely.
कैंडिडेट ऑल्सो मस्ट बी एक्टिव, ये भी बता चुका इन फ्रंट ऑफ द अफेयर, ये नहीं कि पीछे खड़े हो गए भैया यू डू इट, नो दिस इज नॉट कमांडिंग, पार्टिसिपेट. द कैंडिडेट मस्ट केयर लाइक अ फादर, आई हैव टोल्ड यू, डोंट मेक देम डू जंप्स, चलो कूद लो, चलो फेंक दो सामान, डोंट डू इट, you will be considered very careless, very nonsensical. You remember, if you become an officer, you not only have to care for the troops, they'll fight for you. Remember that officer, Golan Valley, and what happened there? In that, everybody was ready to fight for their CEO because they loved him. You have to earn that love. वो प्यार तुम्हें जीतना है अपने ट्रूप से, और वो क्या होता है? केयर, कंसर्न, राइट, ज्यादा नहीं बोलना, कम नहीं बोलना, उनकी परवाह करना. दैट इज हाउ मस्ट बी एक्टिव. द कैंडिडेट मस्ट एक्ट लाइक अ फादर, yet also be a task master, काम भी करवाए स्टेप बाय स्टेप. कैंडिडेट मस्ट नेवर पैनिक इवन दो द ऑफिसर वुड क्रिएट स्ट्रेस, डरना ही नहीं. पुशिंग फास्ट सोल्यूशन, कैंडिडेट शुड कंसंट्रेट ऑन स्ट्रक्चर एंड कैंडिडेट शुड कीप ट्राइंग डिफरेंट पॉसिबिलिटीज. बस अरे स्ट्रक्चर पे ध्यान दो, आ जाएगा आंसर. The instruction that the candidate should give must be clear. ये नहीं कि ओ yes, it should be clear. ये लगाओ, उधर जब पहुंचोगे तो ये करो. You please do this. If you reach there, you do this. Then you tie this. Right? Remember that and tell the purpose clearly to the helping people. The candidate is provided tasks with structures like progressive tasks, so you don't have to worry. You earlier had done half the numbers, now you are expected to resolve with only 2 or more. Do it. The illustration is given. अब आप थोड़ा सा task देखिए and possible solution. The right command can use a sample. एक दो sample दे देता हूँ कि कैसे command देना है. How the changes can be made, and you should make changes. Don't copy. Everybody don't copy. It will become stereotype. नकल हो जाएगी. सब लोग का normal लिखिएगा. Normal देखिए. Dear friend, Sir has told us to go from the starting line here and to the finish line. Dear chess numbers, भी बोल सकते हो, chess number 7 and 5. Dear friends, भी बोल सकते हो. The rule of color is the same as was in progressive group tasks and half group tasks. जो group tasks में दिया गया था rule वही है. We were given a plank, a rope, we are given a plank, a wooden block as helping material. ये सामान दिया गया है. Our plan would begin with, हम लोग ये बनाएंगे making a bridge from this point by placing, और फिर आगे चले जाओ. To the point, yet clear instructions are required so that minimum confusion is created. कोई confusion नहीं है, बस normally आता जाएगा. Is it clear? Good. Sample individual वो अभी हम कराते हैं. One more thing which I wanted to tell you, that whenever you are performing this task, you have to enjoy both as a subordinate, both as a commander. You have to do your best. You have to be polite to everyone, never give up attitude, and most importantly, don't try to become extra smart. Enjoy doing it. Please don't look, one thing which I have regularly said, while performing, focus on the task. Don't look from the corner of the eye to the GTO. कभी मत देखा करिए. जितना आप काम में enjoy करेंगे उतना आप सिलेक्ट होंगे. अगर कॉर्नर ऑफ द आई से जीटीओ को देखेंगे तो जीटीओ क्या सोचेगा? प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट विल द जीटीओ थिंक, दैट यू आर नॉट फोकस्ड ऑन वर्किंग, यू आर मोर फोकस्ड ऑन इम्प्रेसिंग. आप दूसरे को प्रभावित करने की ज्यादा कोशिश करते, काम करने में आपका रुचि नहीं है. दैट इज रॉन्ग. इज इट क्लियर? सो लेट्स गो अहेड. अब ये देखिए कमांडर, ये आपको एक टास्क दिया जा रहा है जिसमें आपको ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर ने आपको बोला, कमांडर यू आर इन इलेक्ट्रोक्यूटेड वेल. चारों तरफ से कुआं है जिसमें बिजली दौड़ रही, along with your subordinate, बीच में खड़े हैं, and you have to get out from that safely. बाहर निकलना है आपको. along with your subordinate, बाहर भी निकलना है और सबको लेके जाना है. make sure that you get all the helping material also. सामान के साथ बाहर जाना है. you are also required to use all the different structures. जो भी अलग अलग तरीके हैं उन सब का इस्तेमाल करके सब जन को बाहर निकालना है. to cover all the possibility and the way to perform. Remember the rules of colors are the same. जो रूल दिए गए थे कलर के वही हैं as you did in different tasks or progressive group tasks. कमांडर आपको एक एक चीज बता रहा है कि आपको बाहर निकलना है
अलग अलग स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है, कलर रूल वही होगा। रेड जोन इज आउट ऑफ बाउंड बताएगा, ब्लू कैन बी यूज्ड टू स्टैंड बट मटेरियल कैन नॉट बी केप्ट ऑन इट, एंड इन द व्हाइट यू कैन स्टैंड एंड कीप मटेरियल आल्सो, कर सकते हैं। प्लीज बिगिन एज योर टाइम ड्यूरेशन इज ऑफ, जो भी आपको टाइम देगा 5 मिनट 10 मिनट वो बताएगा। Whom will you call and why as your helping person पूछेगा। He will ask you, आपको दिया समझाया उसने, now you will think, तुरंत नहीं बुलाना है, थोड़ा think कि कौन कौन हो सकता है, and then call. He may ask you why, sir I would be requiring this, second these two people I feel they will be able to cooperate with me। आपको एक logic लगानी, that should not be emotional based, it should be task based, काम के अनुसार बुलाना। Is it clear? Okay. Sir, I would like to call candidate with chest number 5 and chest number 6 as my helping mate, उन दोनों को बुलाना चाहता हूँ। Question of the officer, why have you selected these two? पूछेगा क्यों, why you want to call these two people, क्यों बुलाना है। आंसर आपका होना चाहिए, sir I am sure their board would assist me, अच्छा मदद करेंगे, as they have been very active and cooperative। In addition chest number 5 is tall, लंबा है, and strong to help with plank movement, वो मदद कर देगा, which I see would be required। बस बता दिया कि मुझे लग रहा है कि ऐसी जरूरत होगी इसलिए मैंने उसको बुला लिया, राइट। आंसर ऑफ द ऑफिसर, ओके मैं कॉल एंड बिगिन, आप शुरू कर सकते हैं। As soon as the candidate chest number 5 and chest number 6 arrive, the candidate will address to them, क्या बोलेगा वो भी जरा सुनने। Address to them कि see, we are here standing in an electrocuted well, we are having these structures outside this structure, outside this structure, we have helping material, plank, एक पटरा है, एक बल्ली है, रस्सी है, लॉन्ग रोप स्मॉल रोप दोनों है, हमें यहाँ से बाहर निकलना है। इज इट क्लियर? हो सकता है कि वो स्मॉल रोप हटा दें या लॉन्ग रोप हटा दें, स्मॉल रोप, एनीवे यू वॉट एवर इज देयर यू विल हैव टू टेल, सो विल बी स्टैंडिंग देयर। अंडरस्टूड? नाउ dear friends, we have to get out of this structure which is an electrocuted well, बता चुका हूँ, and thereafter using the other structure we will retrieve the man and material trap, दूसरे की मदद लेके निकालेंगे। As I observe, the first plan is to make a bridge by first placing the wooden block in this cut socket, ये cut socket में बनाएंगे, thus making the spaceless, बताएंगे वो, अभी वो आगे सब समझ में आ जाएगा। Thus making the two to allow the plank a steady position as a bridge, बनाएंगे like diving board of a swimming pool, and once it is ready, एक बार ready, we'll go out। That is how me and chest number 5, and from that there we'll use different structure to get that chest number 5 out। एक इंस्ट्रक्शन आपने क्लियरली दिया, पर क्या किया आपने, बताया क्या और करा क्या, इस कैंडिडेट को समझे। नोट इन दिस टास्क, कैंडिडेट इज स्टीम स्टक इन द मिडिल एंड हैज टू मेक देयर वे आउट। ठीक, ओके, अब आप शुरू हुए। कैंडिडेट स्टैंडिंग इन द path using structure 1, command with the help places the wooden log and plank is placed in between wooden log and underside। चलिए इसको देखिए, यहाँ पे तीनों जन खड़े हैं, ओके, आपने उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि हम लोग ये बाहर निकलेंगे, यहाँ पे कट मार्क है, उनको इंस्ट्रक्शन दिया यहाँ वुडन लॉग लगाएंगे, विल प्लेस द वुडन लॉग, ऐसे लगाएंगे, और इसके बीच में पटरा लगाएंगे, विल पुट द प्लैंक एंड दस विल क्रिएट अ ब्रिज एंड गेट आउट। गॉट इट? अब कौन कौन बाहर है, अंदर रह गया और सामान भी रह गया, राइट, ओके, अंडरस्टूड नॉट अंडरस्टूड। 3 जन खड़े हैं, एक आप हैं, आपके 2 हेल्पर है, आपने उनको बोला कि लेट्स डू दिस, दोनों ने मदद कराई, आपने ये लगवाया और ध्यान रखा कि बैलेंस सही है, रस्सी जरूरत है तो रस्सी बंधवाई, एंड केयरफुली पार्टिसिपेट किया। फिर आपने क्या किया, आप एक के साथ बाहर आ गए, विद वन यू हैव कम आउट एंड वन यू हैव लेफ्ट बिहाइंड, ओके। Take plank from last person to get the last candidate, will tie a rope around 2 bigger pole। अब उससे plank ले लिया और plank बनाया। अब ये देखिएगा, ये थोड़ा I would like this structure to be coming again, but अभी सरस समझिए इसको। आपने plank ले लिया और उससे बोला ओके बाहर के structure से हम तुम्हें बुला लेंगे। Then what will you do? Let's go further। Now that we have got out of this structure which is electrocuted, we will use the other structure to retrieve the man। उसको बचाओ। as I observe, ब्रिज बनाएंगे वुडन ब्लॉक लेके कट सॉकेट में, ये आप यहाँ पे देखेंगे how you see this। now that we have got out of which is an electrocuted, आगे बढ़िए।
You have now taken the other areas. ये जो 2-3 स्ट्रक्चर हैं, दोनों के बीच में रस्सी बांधी, इसके बीच में प्लैंक रखा, आप आगे गए, and you will help the person out. Is it clear? You see this? I'm trying to explain you, maybe more better explanation, but right now for an overview it is good enough. You will learn from the students also. They will do this, and you will learn from their example. Oh, this is very much possible, because they will do it very peacefully and easy. But you understand this first. ये दो थे, एक तीसरा था. आपने अगर ध्यान नहीं दिया तो मैं आपको जरा वापस दिखाऊं. ये दो थे, ये तीसरा था. इसके बीच में हमने पटरा रख दिया, या रस्सी बांध दी, ब्रिज बन गया, और हमने इससे इस जन को ले लिया. पहले तो बाहर निकल गए, फिर इससे बाहर निकाल लिया. गॉट इट? ओके. देखो प्लैंक निकाल लिया इन्होंने. नाउ वी हैव मेड दैट स्ट्रक्चर एंड गॉट द अदर पर्सन आउट. अभी उसने क्या कहा था? व्हाट डिड द कमांडर से? दैट यू डोंट हैव टू यूज वन स्ट्रक्चर, यू हैव टू यूज द अदर आल्सो एंड गेट द पर्सन आउट. अभी वो भी होगा. कमांड टास्क हमेशा आपको 2-3 तरीके से सॉल्व करने के लिए बोलेगा, और वो देखना चाहेगा कि आप युक्तिपूर्ण कर पाते हैं कि नहीं. आर यू एबल टू अप्लाई द ब्रेन एंड गेट इट डन? तो वो देखेगा. चलिए यहां से शुरू, आगे बढ़ते हैं. Part 2, using structure. Go to structure, place the wooden log on the outside, place plank. Now remaining can jump over. अब ये देखिए, ये दूसरा स्ट्रक्चर उन्होंने यूज किया. ये रेड, ब्लू, व्हाइट है. जमीन में पटरे लगे हैं. 3 सिंपल प्लेटफॉर्म टाइप्स. यू हैव टू गो अक्रॉस. वो बोलता है यहाँ से ही जाना है. आप जान रहे हो कि अगर ऐसे रखोगे तो रेड टच करेगा, इट विल बी टचिंग. सो व्हाट डिड यू डू? यू पुट अ लॉक. यस. नाउ व्हेन यू हैव प्लेस्ड द लॉक, उसको एलिवेशन मिल गया. ओके, एक जन खड़ा हो गया. राइट, डन. नाउ वन ऑफ द पर्सन हैज पुट इट एंड गॉन हियर. तो लास्ट वाला आ गया. रेड, ब्लू, व्हाइट है तो व्हाइट के बेस पे आ गया. अब कभी कभी व्हाइट के बाद वो टच कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? रोप का बंडल यहाँ पे रख सकते हो, और जब ये टच करेगा तो उसको उठा सकते हो. आप नहीं समझ पाए तो चलिए मैं आपको समझाने की एक चेष्टा करता हूं. लेट मी ट्राई. देखिए, ये आपके तीनों पटरे हैं, रेड, ब्लू, व्हाइट. राइट. आपने ये लाइन के बाहर ये लॉग रखे, क्या किया? ये पटरा आपने इसके ऊपर ऐसे रखा. राइट, रखा कि नहीं रखा? अच्छा, आपको नहीं समझ में आ रहा? चलिए मैं उसको समझाने की फिर से कोशिश करूं. ये आपने पटरा अगर रखा, इसके ऊपर ये आपका लॉग पड़ा हुआ है, और ये आपकी लाइन है. इसके बाद लॉग है, ये एक आदमी ने पैर रखा हुआ, यही है ना? ओके. इसके कारण क्या होगा? ये रेड को वो टच नहीं कर रहा, नहीं टच कर. ब्लू को भी ये टच नहीं कर रहा, व्हाइट को नहीं टच कर रहा, पर ये ग्राउंड में टच कर रहा. तो प्रॉब्लम ये है कि हम क्या करें? तो हम यहाँ पे एक रोप का बंडल नीचे लगा सकते व्हाइट में, और इससे क्या होगा? जैसे कि ये पोल रखा है, ये वो पैर है, ये ब्लॉक है, यहाँ पे वो गिरने लग गया, तो यहाँ पे फिर रस्सी का बंडल ने क्या किया? इसको हाइट दे दी. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज बीन डन हियर. और इससे उसको बुला लिया. अब उन्होंने बोला तीसरा यूज करो, यूज दी थर्ड वन. देन व्हाट विल यू डू? वो भी हम लोग कर लेते हैं. एक बार सीखो. मैं कभी भी एक बार में सिखाने के मूड में नहीं रहता. मैं चाहता हूं कि आपके पास हमेशा कुछ सवाल रहे, कुछ अधूरापन रहे, फिर आप दोबारा पढ़ो, और दोबारे के बाद स्टूडेंट के भी एक्सरसाइजेस करो, तो आपका दिमाग खुलेगा. वन टाइम में आप मुझे ब्लेम कर रहे हो, बेवकूफ हो. मैं भी एक बार में नहीं सीखा था, और सीखना भी नहीं चाहिए. चलिए आइए, ये वाला स्ट्रक्चर देखिए. इन्होंने ये किया, ये बोल रहे चलो ये वर्क करेंगे.
इन्होंने वुड लॉग ऑन वन एंड ऑफ रोप बांधा, फेंका और दूसरे तरफ से कैसे स्विंग बनाई देखिए। ये देखिए इन्होंने उठाया, लकड़ी फेंकी, लटक गया फुटबॉल फोर्स, फिर उन्होंने ऐसे लटका लिया, फिर उन्होंने रस्सी को ऐसे ऐसे घुमाया, वो जाके अटक गई वहां पे। फिर क्या हुआ, फिर आपका यहाँ पे देखिए ये उन्होंने तेजी से खींच लिया। जब खींच लिया तो आदमी लोग स्विंग करके बाहर चले गए। बाहर जब चले गए तो उन्होंने वो रस्सी को खोल लिया, लकड़ी को खोल लिया। फिर क्या किया उन्होंने, देन दे हैव टाइड इट हियर, और बाहर 2 जन जा ही चुके थे तो उन्होंने वहां पे एक बाहर में रख के बना लिया और लास्ट वाला जन उससे आ गया, फिनिश। तो आपने तीनों चारों तरीके से ब्रिज बनाना, रोप का यूज करना और आपने लीवर का यूज करना, तीनों प्रणाली से by using all the 3 you have done it. This is called a command task, and this can tell that you can solve. It is maybe the task is not clear, you have to repeat, you have to revise. The student will also show you this command task on figure. Now you want real videos, we can do that, but later. But first we want you to learn to visualize, and if you will visualize, you will be able to do it well. Don't bother, you will be able to do it. But after having this basic, when you will go for ground, you will find, oh my God, it's so easy. And that's exactly what is the purpose of our app. Our app is only to expose you with an imagination which makes every difficult situation easy. But your thinking power is important. You will say, I couldn't get it. Don't. Focus, you will do it. Focus again, you will do it. Third time focus again, you will understand. If many students of you, you all have understood, right? Few may not have understood, revise, you do it. You also, okay, you have not understood. You want to see it again, okay, do it slowly. Do it again, you will do it. Got it? So this is what I wanted to tell you about command task. It's all about checking how well you can get things done, how well you apply your mind, how well you are able to create resources, and how well you are able to solve. Thank you very much. Jai Hind.